Welcome students. So our next chapter is discount and tax, which is chapter number 8. So okay students, you as you all know that festival season is coming, Dashera and Diwali and Durga Puja. So many festivals are coming. So you must have seen the advertisement of Flipkart and Amazon showing this great Indian sale or Big Billion Days sale. So what is this sale all about? It is that they would be giving you some discount on whatever products they are selling. Okay, and what is this discount? Whatever is price mentioned, whatever price is mentioned on that product. Okay, suppose it is a suppose it is a chocolate. Okay, so if 50 rupees is mentioned on that chocolate, so they will they will sell on in these and during the sale they would maybe sell that chocolate for 40 rupees. So one price is mentioned on that chocolate, one price is there on which they are selling it, and the difference between these two prices is considered a discount. Okay, so we are going to study about all these things. What is discount, what is what is that price called which is written on the product, then what is that price called at which the product is being sold, and everything regarding that. Okay, so first topic is marked price. Okay, marked price denoted by MP. What did I tell? That on that chocolate, suppose 50 rupees is written on that chocolate, so this price which is written or marked on the product, ठीक है, that is known as marked price of the product. Okay, sometimes the product is sold on the same price which is marked on the product, but sometimes there is a little bit of discount at which on the price at which the product is being sold. So MP is marked price, or MRP is, it is also called MRP. MRP is more common word for it. So the market price is called whatever market price is printed on the product is marked price. Then what is discount? The amount reduced in the marked price is called discount. Okay, 50 रुपीज़ की थी, आपने उसमें 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया या रिडक्शन किया, या 100 रुपीज़ की शर्ट थी उसमें सपोज 20 रुपीज़ का रिडक्शन किया प्राइस में. सो द अमाउंट विच इज़ रिड्यूस्ड in the marked price, that amount is called discount. Okay, and this discount is always calculated on marked price. ठीक है, ये बात इसलिए मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज एज यू नो दैट लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP. ठीक है, फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो ये अपॉन में हमेशा CP लिखते हैं, कभी SP नहीं लिखते हैं. सिमिलरली डिस्काउंट इज ऑल्सो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस. देन नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. ठीक है, 50 रुपीज़ की चॉकलेट थी, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट करने के बाद कितना अमाउंट आया? 40 रुपीज़ आया, और 40 रुपीज़ पे उस चॉकलेट को सेल कर दिया गया. सो द अमाउंट और द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज फाइनली सोल्ड आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट is called or is known as the selling price, and usually it is denoted by how you calculate the selling price: MRP MP minus discount. Okay, 50 rupees की चॉकलेट थी, 50 minus 10 is 40, so MP minus discount price is selling price is calculated by using this formula. Now how you calculate discount percent? As I told you, discount percent is always calculated on MRP. So discount percent कैसे calculate करते हैं? Discount which is calculated in rupees. ठीक है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट है वो रुपीज़ में है. सो डिस्काउंट परसेंट is calculated similarly as profit percent or loss percent is calculated. Okay, discount in rupees divided by MP multiplied by 100. MP is marked price. Alright, now next topic here is tax or sales tax. What is sales tax? Tax is calculated on the marked price. Okay, जो भी टैक्स होता है, टैक्स इज व्हाट? एडिशनल. डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस. ठीक है, डिस्काउंट हमेशा हम लोग जब भी डिस्काउंट की बात होती है वी गेट हैप्पी.
ठीक है, बट कभी भी टैक्स की बात होती है तो उससे उसको सुनकर पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट लर्निंग अबाउट दिस टैक्स. वाई? बिकॉज टैक्स इज द अमाउंट विच यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू आर बाइंग. ओके, सर्विस टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, देयर सेल्स टैक्स होते हैं, देयर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स जो आपको पे करना होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, जो भी MRP या MP होता है, मार्क प्राइस होता है प्रोडक्ट का, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन दैट ऑन द MRP. एंड ऑल्सो लिस्ट प्राइस, अगर कहीं ये वर्ड यूज किया गया है लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस इज एक्चुअली वॉट मार्क प्राइस. लिस्ट प्राइस का मतलब वो लोग मार्क प्राइस का की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज वन जनरल फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, मार्क प्राइस उसका कुछ है, प्लस उसमें टैक्स किया, प्लस उसमें कुछ टैक्स लगा, 10% का टैक्स लगा, 20% का टैक्स लगा, 8% का टैक्स लगा. सो मार्क प्राइस प्लस टैक्स, ये जो टोटल अमाउंट होता है उसे न्यू प्राइस कहते हैं. ठीक है, हमेशा टैक्स MRP में ऐड किया जाता है. ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा डिस्काउंट माइनस किया जाता है MRP से. तो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द इट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड डिस्काउंट. Moving to the question of exercise 8.1, first question is that the price of a computer is 27,000, the GST is charged is 12%, you have to find the amount to be paid. ठीक है, कोई एक कंप्यूटर है, the mark price of that computer is 27,000. ठीक है, on that computer टैक्स इज बीइंग चार्ज, GST इज बीइंग चार्ज ऑफ 12%. सो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी. अगेन व्हाट आई सेड कि सेलिंग प्राइस जब टैक्स की बात होती है तो टैक्स को ऐड करते हैं, तब हम उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सेलिंग प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज मार्क प्राइस प्लस टैक्स परसेंट ऑफ मार्क्स प्राइस. ठीक है, टैक्स यहाँ पे कितना है, 12% का निकला लग रहा है. तो 12% किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, MRP पे. हमेशा टैक्स MRP पे कैलकुलेट करते हैं. सो मार्क प्राइस विच इज 27,000 प्लस 12% ऑफ 27,000. सो रिमूव दिस परसेंटेज साइन, 12/100 multiplied by 27,000, 0 gets cancelled out, 12 into 270 would be 3,240, and this 3,240 is added to 27,000 which is 30,240 rupees. So after adding the GST of 12%, that computer will be sold at a price of 30,240 rupees. Okay, now question number 2 is that Uma purchased a hair dryer for rupees 5,400 इंक्लूडिंग 8% GST. ओके, उसने जब मतलब कि उसने जो परचेज किया हेयर ड्रायर 5,400 रुपीज़ का टैक्स दिया उसने, का खरीदा उसने, और इस अमाउंट में 5,400 रुपीज़ में 8% का GST भी इंक्लूडेड है. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको स्पेसिफाई किया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि दिस इज द मार्क प्राइस, मगर अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो प्राइस ऑफ द ड्रायर है दैट इज इंक्लूडिंग द GST. सो प्राइस ऑफ द ड्रायर विद GST कितना है, 5,400 रुपीज़. GST लगा कितना, वैसे 8% का GST लगा, मतलब इसमें 8% का GST ऑलरेडी एडेड है. ठीक है, तो दे आर आस्किंग व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट हेयर ड्रायर बिफोर GST वाज एडेड. ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, यही वाला फॉर्मूला रहेगा. यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग, ये क्या है सेलिंग प्राइस, इसमें टैक्स इंक्लूडेड था ना. सो ये टैक्स इंक्लूडेड वाला प्राइस दे रखा है, टैक्स कितना लगा है ये भी दे रखा है. हमें मार्क्ड प्राइस बिफोर टैक्स वाज एडेड, वो प्राइस कैलकुलेट करना है. ओके, सो यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला लेट द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रायर बी ₹X. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स परसेंट ऑफ मार्क प्राइस. सेलिंग प्राइस इज गिवन 5,400 इज इक्वल टू मार्क प्राइस को हमने X लेट कर लिया, और हम हमेशा टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं MRP पे. तो 8% ऑफ X, MRP तो X है, MP तो X है. ओके, सो X प्लस 8% का परसेंट साइन हटाया, 8/100X. कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट 5,400 इज इक्वल्स टू 108X प्लस 108X अपॉन 100. Taking everything to the left hand side, so 5,400 into 100 upon 108,
doing the required cancellation, so value of X will be 5,000 rupees. So the MRP of the hair dryer before the GST was added, or the price before the GST was added, is 5,000 rupees. Next question is question number 4. A dealer marks a TV set with a price which is 25% more than the cost price. Okay, MRP वो सेट करता है cost price से 25% ज़्यादा, and allows a discount of 10% ऑन इट. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. ठीक है, एक डीलर है, वो अपने टीवी सेट पे जो प्राइस MRP सेट करता है वो कॉस्ट प्राइस का, टीवी के कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, मोर है. डिस्काउंट देता है 6% का. सो दे आर आस्किंग दैट व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. ओके, सो we'll start with that by letting the CP of the TV be X. Let the cost price of the TV be rupees X. So हमें उसने फिर मार्क प्राइस कितना लेट किया है. मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 25% मोर दैन द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज X और 25% मोर का मतलब प्लस 25% of X. So X plus 25% of X is the MRP of the TV. So इसको कैलकुलेट करेंगे. X plus 25% साइन रिमूव अपॉन 100 X. 25 1 25, 25 4 100, 1/4 X. So X plus 1/4 को कैलकुलेट करेंगे. You will get 4x plus X is 5x upon 4. So MRP will be this. MRP would be 5x upon 4. Now how much discount did he give? Discount percent का फॉर्मूला क्या होता है? Discount percent is discount divided by MRP और MP into 100%. So हमें जो वैल्यूज पता है हम उसको पुट करेंगे. So discount percent we know 6. Then discount in rupees we don't know. So discount की जगह हम D लिखेंगे. Discount divided by, now since MP is in fraction तो हम इसको अपॉन में लिखने की जगह ऐसे डिवीजन में लिखेंगे. D divided by 5x upon 4 whole multiplied by 100. Now doing the required calculation. So that would be 6 is equals to now this division we'll do the reciprocal here in the next step. So D multiplied by 4 upon 5x into 100. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 is 0. So that would be how much? D into 4 into 20 upon X. So taking everything else to the left hand side with the 6 and leaving D this side. So 6, this X was in denominator, so this will be in numerator here. 6x upon 4 into 20 is 80. So 6x upon 80 is the discount. Now this D means discount in rupees. Keep in mind this D means discount in rupees. Now since we have calculated D, so we will apply the formula. SP is equals to, what is the formula for SP? Mark price minus discount. Whatever values we know, we are going to use those values. Mark price we have calculated 5x minus 4 minus discount we have calculated 6s upon 80. इसको calculate करेंगे तो LCM of 4 and 80 would be 80. 80 comes 20 times in table of 4, so 5 into 20 is 100x minus 81 is 80, so 6x will be written as it is. So selling price of the product would be 94 upon 80x. ठीक है. नाउ 94 अपॉन 80 एज यू कैन सी इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, 94 इज ग्रेटर देन 80, सो इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो देयरफॉर SP इज ग्रेटर देन CP हियर. ठीक है, CP क्या था? CP x लेट किया था ना. x के आगे कोई वेरिएबल नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. एंड व्हाट डिड आई से? तो CP क्या हो गया? 1x हो गया. और यहाँ पे जो SP है, मैंने बोला कि when it is a improper fraction it is always greater than 1. So SP is greater than 1 and CP is 1. So SP is greater, but obvious. So SP is greater than CP. So we are having profit. So SP minus CP is equals to profit. 94x upon 80 minus x is equals to profit. इसको LCM लेंगे तो 94x minus 80x upon 80 is equals to profit, which is 14x upon 80 is equals to profit. प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम लोग को कैलकुलेट करना था. प्रॉफिट इन रुपीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट इन रुपीज़. नाउ प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सो प्रॉफिट इन रुपीज़ वी नो विच इज 14x upon 80 divided by CP which is x into 100. Now doing the reciprocal in the next step, you will get how much? 14x upon 80 into 1 upon x into 100. X gets cancelled out, 0 gets cancelled out, then 2 4s are 8, 2 5s are 10, then 4 2s are 4 7s are 35 upon 2, यानी कि 17 whole 1 upon 2%
प्रॉफिट हुआ है इस पूरे ट्रांजैक्शन में. मूविंग to question number 6. Question number 6 is Divya buys goods worth rupees 5500. She gets a discount of 5% on it. After getting the discount, if GST is charged at rate of 5%, find the total amount she has to pay. ठीक है, दिव्या ने जो भी सामान खरीदा उसकी टोटल वैल्यू 5500 है. उसके बाद उस 5500 पे उसे 5% का डिस्काउंट मिल गया. तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो अमाउंट आया उस पर 5% का GST भी कैलकुलेट हुआ. सो फाइनली उसे कितना अमाउंट पे करना है, दिस इज वॉट वी हैव टू कैलकुलेट. सो शी परचेज द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो उसने परचेज किया वो उसका क्या होगा, मार्क प्राइस. सो MP is equals to 5500. उसे डिस्काउंट कितना मिला, 5% का. उसे DST उस पूरे प्रोडक्ट पे GST कितना लगा, 5% पे. तो अमाउंट टू बी पेड कैलकुलेट करना. सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि डिस्काउंट मिलने के बाद उसे कितना अमाउंट पे करना था. ठीक है, सो सेलिंग प्राइस टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर्मूला इज MP प्लस डिस्काउंट परसेंट. MP कितना था, 5500 प्लस डिस्काउंट 5% का मिला है. सो 5% ऑफ किस पे डिस्काउंट मिला है, MP पे ही तो मिला है. तो 5% ऑफ 5500. अब क्योंकि यहाँ पे ये माइनस करना है, ठीक है, टैक्स नहीं है, बीच में प्लस नहीं करना है, माइनस करना है. डिस्काउंट में माइनस करते हैं. सो 5500 माइनस 5% अपॉन 100 इंटू 5500. 0 गेट्स कैंसिल्ड आउट. 5 इंटू 55 इज 275. सो 5500 माइनस 275 इज 5225. आफ्टर डिस्काउंट शी हैड टू पे दिस अमाउंट. ठीक है, अब इस अमाउंट पे ये जो माइनस करके आया है इस पे 5% का GST भी लगा है. तो GST कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस GST परसेंट. सेलिंग प्राइस कितना है, 5225 प्लस इसी पे 5% का डिस्काउंट लगा है, टैक्स लगा है. सो 5% ऑफ SP. Therefore 5225 प्लस 5%, सो 5 अपॉन 100 इंटू 5225. कैलकुलेट कर लिया हमने सारा, जो भी कैंसिलेशन है, जस्ट डू दैट कैलकुलेशन एंड द फाइनल वैल्यू और द फाइनल अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड इज 5486.25 रुपीज़. ओके, दिस इज द फाइनल अमाउंट. पहले क्या किया, पहले डिस्काउंट दिया, फिर GST लगाया. तो डिस्काउंट करने के लिए पहले हम सेलिंग प्राइस करेंगे, फाइंड करेंगे माइनस करके डिस्काउंट को, एंड आफ्टर फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस हम उसका फाइनल अमाउंट निकालेंगे उसमें टैक्स ऐड करके. Next question is question number 9. Sarita gives a discount of 15% on sarees sold by her and still gets a profit of 13 whole 1 upon 13%. What is the cost price of a saree whose marked price is 3200? सरिता जो अपनी साड़ी सेल करती है उस पर 15% का डिस्काउंट देती है और डिस्काउंट देने के बाद भी शी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 13 होल 1/3%. ठीक है, वो अपनी हर साड़ी पे जो मार्क करती है, मतलब कि प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी साड़ी के ऊपर जो प्राइस लिखती है, दैट मार्क प्राइस इज 3200. तो निकालना यह है कि साड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी. सरिता वो साड़ी खुद कितने रुपीज़ में खरीदती है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, दैट वी नीड टू कैलकुलेट हियर. ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब हमें डिस्काउंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हमें वो एक कॉमन लिंक निकालना चाहिए जो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के साथ मैचअप करे और डिस्काउंट के साथ भी लिंक हो. तो अगर ध्यान से फॉर्मूले देखें तो डिस्काउंट की हेल्प से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट की हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो डिस्काउंट और MP इन दोनों की हेल्प से मार्क प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, डिस्काउंट कितना देती है वो दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. उन दोनों की हेल्प से हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और उस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करके हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो दिया है और जो निकालना, उनके बीच में एक ना कोई लिंक होगा जो हमें दोनों ही फॉर्मूले से कनेक्ट कर रहा होगा. यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों फॉर्मूले में कॉमन है. ठीक है, उसे फाइंड करेंगे तो हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. सो टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट. मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी वॉज 3200 माइनस 15% ऑफ मार्क प्राइस डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, सो 3200 माइनस 15% ऑफ 3200. नेक्स्ट 15% का साइन हटाएंगे अपॉन 100 इंटू 3200. 0 गेट्स कैंसिल्ड आउट. 15 इंटू 32 इज 480. सो 3200 माइनस 480 इज 2720 रुपीज़. सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी, वो मतलब डिस्काउंट देने के बाद वो साड़ी कितने रुपीज़ में सेल कर रही है, 2720 रुपीज़ में. अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट. बट सिंस हियर द प्रॉफिट वॉज 13 होल 1/3 विच इज 13 3 जा 39 प्लस 1
40/3%. हेयर सिंस द प्रॉफिट इज इन फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बीच में डिवीजन लगा के सॉल्व करेंगे. सो 100 इंटू एस पी विच इज़ 2720 रुपीज़ इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस 13 होल 1/3%. सो कैलकुलेटिंग दिस, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20, दिस इज व्हाट 2,72,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40/3. सॉल्विंग द सेकेंड ब्रैकेट, हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 300 प्लस 40/3 विच इज़ 340/3 in the second bracket. ठीक है. Then to solve the division sign we will do reciprocal in the next step. So 2,72,000 multiplied by 3/340, 0 gets cancelled out. Then 1s are 7s are, here also 2 times गया, 2 1s are 2, 3s are 2, 6s are 0. Then 17 1s are 17 and 17 8s are 0s are. Okay, so 2,400 would be the cost price of the sari, ऑफ ईच साड़ी जिस पे वो सरिता उसे परचेज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% and 5%. ओके, कभी कभी इफ़ यू विजिट अ मॉल तो यू वुड सी दैट किसी भी प्रोडक्ट पे पहले 10% का डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद 5% का डिस्काउंट दे देते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया है. उसका मतलब ये होता है कि पहले जो 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उस पर हम 5% का, उस पर वो लोग 5% का डिस्काउंट और देंगे. कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि 50% डिस्काउंट ऑफ 50% प्लस 50%, तो आप लोग को लगता है 100% द प्रोडक्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 50% का डिस्काउंट लगा, यानी कि अब उसका कॉस्ट 50 रुपीज़ रह गया, और 50 रुपीज़ का 50% इज़ 25 रुपीज़, यानी कि अब वो प्रोडक्ट जो 100 रुपीज़ का था वो अब हमें एक्चुअली में 25 रुपीज़ का पड़ेगा. तो 100% डिस्काउंट नहीं है, वो एक्चुअली 75% डिस्काउंट है. ठीक है. तो इससे जो हमें कभी कभी सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे देते हैं, एक डिस्काउंट की जगह 2 या 3 डिस्काउंट दे देते हैं, तो उनको अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह सिंगल इक्विवेलेंट उसी के बराबर, लेकिन सिंगल अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है. तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया गया है 20% का, सेकंड डिस्काउंट कितना दिया गया है 5% का. तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है. सो लेट द, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्स लेट करके नहीं करेंगे, 100 लेट करके करेंगे. ठीक है. ईजिली हो जाएगा. लेट द मार्क प्राइस ऑफ बी 100 रुपीज़. सो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट 20% का था, तो फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद कितना अमाउंट बचा, 100 माइनस 20% का डिस्काउंट था, तो 100 माइनस 20 इज़ 80 रुपीज़ बचा. ठीक है. फिर जो ये 80 रुपीज़ आया उस पर कितना डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट कितना दिया गया 5%. सो प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट इज 80 माइनस 5% ऑफ 80. ठीक है. तो 80 माइनस यहाँ पे भी किया है मैंने 20% ऑफ 100, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए वो 20 आ गया डायरेक्टली. यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. 80 माइनस 5% की जगह 5/100 इंटू 80, 0 गेट्स कैंसिल्ड आउट, 5 1 5 2 2 1 2 4 सो दैट इज 80 माइनस 4 दैट इज 76 रुपीज़. ठीक है. 2 डिस्काउंट देने के बाद क्या आया 76 रुपीज़ आया. सो सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 माइनस 76, शुरुआत में 100 रुपीज़ से, अब 76 रुपीज़ इनको माइनस कर दिया तो कितना आया 24. यानी कि ये जो अलग अलग ये 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 20% और 5% का, जिसको हम यूजुअली ऐड करके 25% बोल देंगे उसका इक्विवेलेंट होगा, एक्चुअली में उसका इक्विवेलेंट 24% है. ठीक है. जब आपको आप 100 रुपीज़ पे 24% का डिस्काउंट दोगे तब इतना अमाउंट आएगा. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Find the rate of discount being given on a shirt whose selling price is 576 after deduction of 104 on the mark price. ठीक है. क्या है कि एक शर्ट है जिसका सेलिंग प्राइस क्या है 546. ठीक है. और इसमें डिडक्ट किया गया कितना 104 रुपीज़, यानी इस बार अमाउंट परसेंटेज में नहीं रुपीज़ में दे दिया इन्होंने. हमें क्या निकालना है कि कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट. तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, दिस वी हैव टू कैलकुलेट. सो एस पी इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला फॉर एस पी इज, जब डिस्काउंट रुपीज़ में दिया होता है तो एस पी इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है. तो हमें यहाँ पे मार्क प्राइस पहले कैलकुलेट करना है. एस पी इज ऑलरेडी गिवन. ओके. सो डिस्काउंट, वी विल टेक डिस्काउंट टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो एस पी प्लस
डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस. SP इज 546, डिस्काउंट इज 104 रुपीज़. इनको ऐड किया तो 650 रुपीज़ इज द मार्क प्राइस. डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है. फर्स्ट इज डिस्काउंट इन रुपीज़, सेकेंड इज मार्क प्राइस. तो हमें दोनों ही पता चल गए हैं. डिस्काउंट इन रुपीज़ इज 104 रुपीज़ एंड मार्क प्राइस इज 650 रुपीज़. सो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, putting the values 104 divided by 650 into 100, do the required calculation and you will get the discount percent as 16%. Next question is the value of a car including GST is 3,82,500. ठीक है, including GST. If the basic price of the car is 3,40,000, find the rate of GST on car. Okay, so what is given? Price including GST is given and basic price मतलब price without tax is also given. Okay, including tax is also given and without tax is also given. We have to find rate of GST. परसेंटेज में GST फाइंड करना है. So let the GST be X%. मान लिया X% GST लग रही है. So फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंक्लूडिंग GST इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस प्लस X% ऑफ बेसिक प्राइस. यही होता है ना. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स परसेंट ऑफ मैक्स प्राइस. तो ये वही फॉर्मूला है. इसको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है. प्राइस इंक्लूडिंग GST इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस प्लस X% ऑफ बेसिक प्राइस. सो इंक्लूडिंग GST इज 3,82,500 रुपीज़ इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस इज 3,40,000 प्लस X% ऑफ बेसिक प्राइस. सो X upon 100 into 34, 3,40,000. 0 0 gets cancelled out. So and ठीक है. In next step we'll take 3,40,000 to the left hand side. So subtracting it you will get 42,500 and this side इसको calculate करने पे ये आया 3,400x. Now moving 3,400 to the left hand side to calculate the value of x. So 42,500 divided by 3,400, 0 0 gets cancelled out. Then calculated by 17 2s are 17 2s are and then 17 5s are. So 25 upon 2 which is 12 whole 1 upon 2% is the rate of GST for this for the car. So that would be all for this exercise. If there is any doubt in any question you can always ask. Thank you.